کہ طالب علم اپنے خادم کو سامنے دعوت دیں گے. Praise the Lord! 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 Hallelujah! اور اونچی آواز میں کھڑے کھڑے اپنے ایمان کا اقرار کریں گے. میں ایمان رکھتا ہوں خدائے قادر پاک پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا, تمہاری مریم سے پیدا ہوا, پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا, مصلوب ہوا, مر گیا, دفن ہوا, عالم ارواح میں اتر گیا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, آسمان پر چڑھ گیا اور خدائے قادر مطلب باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے, جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر, پاک عالمگیر کلیسیا پر, مقدسوں کی رفاقت, گناہوں کی معافی اور جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. تشریف رکھیں. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کے پرفضل اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. ٹھیک ہے آپ لوگ, میں چاہتا ہوں کوئر کے لیے زوردار کلپنگ کریں, کیونکہ جب بھی میں ان کو کچھ کہتا ہوں کہ یہ میسیج میں نے صبح دینا ہے تو آپ نے یہ گیت گانا ہے, تو بڑی وفاداری کے ساتھ یہ وہ گیت گاتے ہیں. آج 2 گیتوں میں ہم نے گایا اور اس میں ذکر آیا شاہی من برسا. آج یہی میرا ٹاپک ہے کہ بنی اسرائیل قوم کو خدا من کھلاتا تھا. اسی کو آج ہم سیکھیں گے, اسی کو ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل قوم کو خدا کیسے پیار کرتا تھا اور کس طریقے سے ان کی زندگیوں میں کام کرتا تھا. آئیں نکالے خروج کی کتاب 16 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے اینڈ تک اس پورے باب کو آج کلوز کریں گے, اور اس میں سے جو خاص چیزیں ہیں وہ سیکھیں گے, کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سیکھنے والی ہیں تو اس کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں آج ہم دیکھیں گے کہ خدا یہاں پہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے, ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں. آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ پڑھیں. پھر وہ علیم سے روانہ ہوئے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت ملک مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے مہینے کی 15ویں تاریخ کو سین کے بیابان میں جو علیم اور سینا کے درمیان ہے پہنچی, اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بربرانے لگی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے سمندر پار کر لیا, پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ سمندر کے اندر سے گزرتے ہیں. ہم گیت بھی گاتے ہیں, یہ عام سی سٹوری معلوم ہوتی ہے, لیکن جب ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں پھر پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر راز کیا چھپے ہوئے ہیں. جب وہ بیابان میں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک بار پھر ان کے دل جو ہے برگشتہ ہو جاتے ہیں. ہم بھی کئی بار یہی کر رہے ہوتے ہیں, بار بار خدا کی طرف آتے ہیں, بار بار اس کے ساتھ چلتے ہیں, اور لیکن پھر ہمارے دل جو ہے وہ بار بار برگشتہ ہو جاتے ہیں. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے ایک دم سے جب بیابان میں آتے ہیں تو ان کو پرانے کھانے یاد آتے ہیں, بڑے بڑے کھاپے, گوشت, ایسی چیزیں یاد آنا شروع ہوتی ہیں اور وہ بربراتے ہیں. مسحت پر, حلول پر,
और क्या कहते हैं, पढ़े जरा। और बनी इसराइल कहने लगे, काश कि हम खुदावन के हाथ से मुल्क मिस्र में जब भी मार दिए जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठे थे, गोश्त के पास बैठे थे, गोश्त खाने वाले थे, तो खुदा हमें यहाँ निकाल के ले आया बियाबान में। यहाँ क्या मिलेगा हमें, लेकिन ये नहीं पता कि उसके साथ गुलामी कितनी बड़ी थी। आज कई बार हम अच्छा खा तो लेते हैं, अच्छा पहन तो लेते हैं गलत कामों के वसीला से, लेकिन कभी ये सोचा है कि हम किसकी गुलामी कर रहे हैं। यहाँ हमको वो गुलामी भूल गई जो मिस्री उनसे लेते थे, सख्ती करते थे, उनसे काम करवाते थे, उनको मारते थे, वो सारा कुछ करते थे, लेकिन हांडी केड़ी याद, गोश्त वाली। गोश्त याद आ गया, ये नहीं याद आया कि हम पे होता क्या था। कई बार हम भी तो यही करते हैं कि हम भी ये चीजें हासिल करने के लिए हम कभी कभी बुत परस्ती पर चले जाते हैं, उनकी गुलामी करना शुरू कर देते हैं। हम खुदा को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, खुदा को भूल जाते हैं, वैसे ही जैसे वो सारी कौम, वो सारी नस्ल जो है वो भूल गई कि किस तरीके से अभी अभी खुदा ने हमें निकाला है उस गुलामी से, लेकिन हांडियां याद आ गई। और क्या कहते हैं, पढ़े जरा। जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे, जी बैठकर रोटी खाते थे। आज भी कई बार यही होता है, लेकिन आगे जाके सीखेंगे। आप जितना मर्जी कमा लें, सारा टब्बर कमा लो, रात दिन ड्यूटियां कर लो, लेकिन खाना वही है जो आपको आपके हिस्से का, ज्यादा नहीं खा सकते। कभी ये हुआ है कि पैसे ज्यादा आ जाए तो 2 रोटियां की जगह 4 खा सकता है, कोई नहीं खाई जाती। पेट के अंदर वही जाएगा जितनी आपके पेट के अंदर गुंजाइश है, लेकिन हम दिन रात एक कर छोड़ते हैं और खुदा को भूल जाते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं, लेकिन इन चीजों के पीछे हम भागते हैं। देखेंगे आगे जाके, जरा ये पढ़ें इसको जरा। क्योंकि तुम तो हमको इस बियाबान में इसीलिए ले आए, तुम तो हमको इस बियाबान में इसीलिए ले आए कि सारे मजमा को भूखा मारो, ताकि सारा मजमे को क्या करो, भूखा मार दो, भूखे मर जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो खुदा हमें निकाल के ले आया है उस गुलामी के दौर से, उनकी गुलामी से निकाल के लेके आया है, जिसने मिस्रियों को मार दिया और हमें बचा के यहाँ पे ले आया है, क्या वो ये नहीं कर सकता खुराक दे दे? वो नहीं ये कर सकता। आज हम भी तो ऐसे ही हैं, हम भी तो खुद खुराक ढूंढने के चक्कर में लगे रहते हैं और खुदा पर इत्मीनान नहीं करते। हमें जरूरत है कि हम खुदा पर इत्मीनान करें, और जब खुदा पर इत्मीनान करेंगे तो वो अपने खाने की फिक्र करता है। वो तो कहता है अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो अपनी फिक्र, रात पर हमें नींद ना आवे, लेकिन सारी सारी रात प्लानिंग होती है, सवेरे उठ के किथे जाके कमावांगा, कितों पैसे आउणगे, कितों मैं गल्ला परांगा, कैसे ये सारा कुछ करेंगे। हम इन चीजों में फंसे रहते हैं और फिर आखिरकार बीमारियों में गिरफ्तार हो जाते हैं। यहाँ बनी इस्राएल कौम को देखते हैं कि वो भी शिकायत करती है कि वहां तू हमें ले आया है बियाबान में, अब तू हमें मार देगा, हम तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन खुदा ने क्या काम किया उनके लिए, ये पढ़े। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा। खुदावंद कहता है कि मैं आसमान से तुम्हारे लिए क्या करूंगा, रोटियां। आज भी खुदा आसमान से रोटी नाजिल करता है। ये जो रोटी हम खाते हैं, अगर उसकी मर्जी ना हो तो लाखों रुपया भी आपके पास हो तो खा नहीं सकते आप। मैं देखता हूं ऐसे लोगों को जिनको ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, लाखों रुपया होता है लेकिन वो खाना नहीं खा सकते, खाना नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें खुदा की मर्जी शामिल नहीं होती। जब खुदा की मर्जी शामिल होती है तो आप खाना अच्छे तरीके से खा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि खुदा कहता है मैंने सुन लिया है जो शिकायतें तुम कर रहे हो, जो बातें नीचे हो रही हैं, ये सारी की सारी मैं क्या कर रहा हूं, सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, आसमान से तुम्हारे लिए क्या करूंगा, रोटी नाजिल करूंगा। हाँ जी पढ़े। सभी लोग निकल निकल कर फकत एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें। क्या कर लिया करें, महीने का क्या ख्याल, क्या लिखा है, हर रोज के लिए उतना ही बटोरे जितना तुम्हें
खाना है, जितनी तुम्हारी जरूरत है उससे ज्यादा ना करना। क्या हुआ, पढ़े जरा, यहाँ पे एक मौजूद हो गया है कि इसमें मैं उनकी आजमाइश करूंगा, क्योंकि खुदा कहता मैं इसी से तुमकी क्या करूंगा, तुम्हारी आजमाइश करूंगा। मैं तुम्हारी सारी कौम की आजमाइश करूंगा। आज भी खुदा आजमाता है, खुदा देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे भी खुदा कहता मैं आजमाऊंगा कि तुम ज्यादा खुराक तो नहीं इकट्ठी कर रहे, जितनी मैं ऑर्डर देता हूं उतना ही करना, उससे ज्यादा या कम ना लेना। लेकिन उन्होंने क्या किया, लालच किया। कई बार हम भी लालच करते हैं, हम भी लालच करते हैं, खुदा को भूल जाते हैं कि खुदा ने आसमान से रोटी देने का वादा कर रखा है। जी आगे, कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। हाँ जी, और छठे दिन ऐसा होगा कि जितना वो ला कर पकाएंगे वैसे जितना रोज जमा करते हैं दोना होगा। उससे क्या होगा, डबल होगा, उससे डबल होगा। कभी आप पे बीमारी आ जाए, कोई ऐसी मुश्किल आ जाए तो क्या भूखे सोते थे? नहीं, खुदा कहीं ना कहीं से आपकी खुराक का काम चलाता है और आपको खुराक मुहैया करता रहता है। यहाँ पे लिखा है कि छठे दिन ऐसा होगा कि मैं ज्यादा खुराक भेजूंगा और तुम 2 दिन की खुराक जमा करना, क्योंकि अगले दिन तुम्हारे के लिए है, तुम्हारे लिए क्या है, पाक सबत है। उस दिन तूने काम नहीं करना, खाना नहीं बनाना, खाना एक दिन पहले बनाना। लेकिन आज रात को भी हम किसी फैमिली में इबादत करने गए तो जब हम उनके घर में 7 बजे का टाइम था तो हांडी ऊपर चढ़ाई थी, हांडी ऊपर चढ़ाई थी, अब भी खाना बन रहा था। हम ऐसे वफादार हैं कि खुदा कहता है कि एक दिन पहले सारे काम काज कर लेना और कल तुम्हारे आराम का दिन है, कल मेरा पाक सबत है, कल तुमने कोई काम नहीं करना। असी सवेरे सवेरे उठ के कपड़े प्रेस करने, चर्च जाने का टाइम हो गया, फिर भावे लेट हो जाओ, खैर है। हम सुबह उठ के ये सारे काम करते हैं, हम एक दिन पहले ये कोई भी काम नहीं करते। ये हमारी वफादारी है। लेकिन खुदा कितना वफादार है, उसको हम देखते हैं, उसकी वफादारी को। वो कहता है कि छठे दिन मैं इतना भेजूंगा कि तुम 2 दिन की खुराक जमा करना। पढ़े जरा जी आगे। तब मूसा और हारून ने सब बनी इस्राएल से कहा कि शाम को तुम जान लोगे कि जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है वो खुदावंद है। वो कौन है? खुदावंद है, जो तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल के लाया है। शाम को तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कौन है, तुम्हारा खुदावंद है। वो तुम्हें निकाल के लाया है। जब वो निकाल के लाता है, जब वो हमारे साथ रहता है, तो हमें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़े। और सबको तुम खुदावंद का जलाल देखोगे, सबको तुम खुदावंद का जलाल देखोगे। जी, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाने लगते हो उसे वह सुनता है। उस वक्त क्या है? सुनता है। आज भी जब हम बुड़बुड़ाते हैं, ये ज़हन में रखें, कई लोग बातों बातों में खुदा को बुरा भला भी कह देते हैं, लेकिन खुदा क्या कहता है? सुनता है। वो सुन रहा होता है, ये ज़हन में रखें। हम सोचते हो जमीन पे ऐसी वो आसमान पे कितने सुन लेगा, नहीं, वो हमारी हर बात को सुनता है और उसका जवाब देता है। यहाँ पे बड़ी इस्राएल को बुड़बुड़ाती है और खुदा उनकी बात सुन के कहता है कि मैं उनका बुड़बुड़ाना सुनता हूं, मैं देख रहा हूं कि कैसे वो बागी होके कैसी बातें कर रहे हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं? मैं ऐसे अजीब काम करूंगा कि वो जान जाएंगे कि मैं खुदावंद हूं। आगे। और हम कौन है जो तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो? और मूसा ने ये भी कहा कि शाम को खुदावंद तुमको खाने को गोश्त और तुमको रोटी पेट भरने को देगा, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हमारी क्या हकीकत है? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं बल्कि खुदावंद पर है। अब क्या हुआ? खुदा ने कहा कि इनको बता दे कि शाम को तुम्हारे लिए क्या आएगा? गोश्त आएगा। शाम को तुम्हारे लिए गोश्त आएगा और सुबह तुम्हारे लिए क्या होगा? रोटी होगी। गोश्त खाओ, राज्य राज्य के खा लो हो। लेकिन गोश्त सिर्फ खुदा ने 2 बार दिया। जब हम बाइबल को स्टडी करते, लंबा नहीं चला कि गोश्त ही खाई जाओ, गोश्त। आज हम गोश्त के दीवाने हैं। गोश्त खाओ, रोज खाओ, टेढ़ी नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं खुदा ने सिर्फ 2 दिन उनको गोश्त खिलाया और उसके बाद फिर वही मन जो था वो खाते रहे। आए जरा एक हवाला देख लें कि सिर्फ 2 बार ये मन खुदा ने आसमान से नाजल किया था। ये बटेरे जो थे, निकाले गिनती की किताब 11 बाब और उसकी 31 है, पेज नंबर है 120।
और खुदावंद की तरफ से एक आंधी चली और समुद्र से बटेरें उड़ा लाई और उनको लश्करगाह के बराबर और उसके गिरता एक दिन की राह तक उस तरफ एक दिन की राह पर क्या कर दिया? खींच दिया। वहां पे ढेर लगा दिए खुदा ने, और दूसरे दिन भी फिर खुदा ने ऐसा ही किया। पढ़ दे जरा, इसी को दोबारा पढ़े आगे से। और उसके गिरता गिरते एक दिन की राह तक इस तरफ और एक ही दिन की राह तक दूसरी तरफ जमीन से तकरीबन 2 हाथ ऊपर डाल दिया। और लोगों ने उठकर उस सारे दिन और उस सारी रात और उसके दूसरे दिन भी बटेरें जमा की। 2 दिन क्या किए? बटेरे जमा किए। 2 दिन खाया, लेकिन मन जो था वो मुसलसल चलता रहा। वो आसमान से जो रोटी आती है, खाते राज्य के खान वाले कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी अच्छी खुराक मिलती है, लेकिन रोटी का वादा खुदावन ने कर रखा है। हर वक्त मन जो था वो डेली नाज़िल होता रहा, और लास्ट पे जाके पको हुआ। पढ़े जरा इसको, अब तो वापस आ जाए। फिर मूसा ने हारून से कहा कि बनी इस्राएल की सारी जमात से कह कि तुम खुदावंद के नजदीक आओ, क्योंकि उसने तुम्हारा अपन बुराना सुन लिया है। और जब हारून बनी इस्राएल की जमात से ये बात कर रहा था, तो उन्होंने बियाबान की तरफ नजर की और उनको खुदावंद का जलाल बादल में दिखाई दिया। खुदावन का जलाल क्या है? बादल में नजर आया। खुदा वहां पे मौजूद था। आज भी खुदा यहाँ पे मौजूद है। जहाँ खुदा के लोग ठहर जाते हैं, जहाँ साज और आवाज मिल जाते हैं, उसका पर छा जाता है। खुदा यहाँ पे मौजूद है। कितने लोगों का यकीन है, कितने लोगों का ईमान है कि खुदा आज हमारे दरमियान उतरा हुआ है और वो कसरत से काम करता है। खुदावन का जलाल यहाँ पे जाहिर हो रहा है। इसलिए आज जरूरत है कि हम खुदावन के यसू को जाने, खुदावन को जाने कि वो हमारी खुराक का बंदोबस्त करता है। मन जो है वो मुसलसल आता रहा, और मन का मतलब है कोई पता नहीं। सवाल था ये, इसका कुछ भी नहीं पता कि उनको क्या था, इसलिए उन्होंने कहा ये मन है। उसका नाम नहीं था ये मन, लेकिन उन लोगों ने उसका नाम मन रख लिया क्योंकि उनको पता नहीं था। उन्होंने एक दूसरे से सवाल किया, ये क्या है, ये क्या है? तो उसका मतलब है मन, कि मुझे नहीं पता कि ये क्या है। लेकिन ये खुराक आसमान से मुसलसल नाज़िल होती रही। पढ़े आगे। और खुदावन ने मूसा से कहा, मैंने बनी इस्राएल का अपन बुराना सुन लिया है। सो तो उनसे कहते हैं कि शाम को तुम गोश्त खाओगे और सुबह को तुम रोटी से सेव होगे, और तुम जान लो कि खुदावन तुम्हारा खुदा मैं हूँ। और यूं हुआ कि शाम को उतनी बटेरें आई कि उनकी खैमागाह को ढांक लिया, और सुबह को खैमागाह के आसपास ओस पड़ी हुई थी। और जब वो ओस जो पड़ी थी सूख गई, तो क्या कहते हैं कि बियाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज ऐसी छोटी जैसे गोल गोल ऐसी छोटी जैसे बालों के दाने होते हैं, बालों के दाने होते हैं, ऐसे छोटे छोटे जैसे धनिये के दाने होते हैं, वैसे वो दाने खुश्क होके, ओस जो थी वो खुश्क हो गई और वो दाने बन गए। और उन्होंने वो इकट्ठी की और जाके आटा बना के उसको खाया। और ये ऐसी चीज थी, इसके साथ कोई भी सालन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो मीठा था। कुछ लोग उबाल के खाते थे और कुछ उसको रोटी की तरह पका के खाते थे। पढ़े जरा इसको। जमीन पर पड़ी है। बनी इस्राएल से देखकर आपस में कहने लगे मन, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा कि ये वो रोटी है जो खुदावन ने खाने को तुमको दी है। जो खुदावन ने तुम्हें खाने के लिए दी है, ये वो रोटी है जो आसमान से नाज़िल हुई है। आज भी खुदा आसमान से हमारे लिए रोटी मुहैया करता है, खुराक का बंदोबस्त खुदा करता है। आगे। खुदावन का हुक्म ये है कि तुम उसे अपने अपने खाने की मिकदार के मुताबिक, यानी अपने अपने आदमियों के शुमार के मुताबिक फिकस 1 ओवर जमा करना, और हर शख्स उतने ही आदमियों के लिए जमा करे जितने उसके डेरे में हो। जितने उसके डेरे में उतनी खुराक जमा करना जितनी तुम्हें उसकी जरूरत है, ज्यादा नहीं, न कम ना ज्यादा। और फिर क्या हुआ? पढ़े। चुनाचे बनी इस्राएल ने ऐसा ही किया, और किसी ने ज्यादा और किसी ने ज्यादा और किसी ने कम इकट्ठा किया। लेकिन फिर क्या हुआ? जिन्होंने ज्यादा किया था, जब वो घर आए, जब उन्होंने उसकी पैमाइश की, तो वो उतनी खुराक थी जितनी उनको जरूरत थी, ज्यादा नहीं हुई। और जिन जो कम ले आए थे उनकी कम नहीं हुई, बल्कि उनकी भी उतनी खुराक थी जितनी खुदावन की मर्जी थी, जितनी उस
घर वालों को जरूरत, आज जितना मर्जी इकट्ठा कर ले, लेकिन खुराक वही जो खुदा ने आपके हिस्से में रखी हुई है। आप ज्यादा नहीं खा सकते, ज्यादा जमा नहीं कर सकते। आप अपनी हड्डियों को बेचैन कर देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि खुदा जितने काम ज्यादा लेके आए थे वो सबकी क्या होगी, बराबर होगी। जी पढ़े आगे। और जब उन्होंने उसे अमर से नापा तो जिसने ज्यादा जमा किया था कुछ ज्यादा ना पाया, और उसका जिसने कम जमा किया था कम ना हुआ। वो कम ना हुआ, बराबर। आज भी खुदा उतनी खुराक हमें देता है जितनी हमें जरूरत है। और ये मन को जो अगर हम तशबीह दें खुदा यीशु मसीह से, तो ये वो रोटी है जो आसमान से नाज़िल हुई थी, जिसमें इंकसारी थी। खुदावंद में क्या थी? इंकसारी थी, कामलियत, मकबूलियत और मठास की तस्वीर थी। खुदावंद यीशु मसीह मीठा बोलते थे, मीठी बात करते थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को हम मन के साथ तशबीह दे सकते हैं। वो आसमान से रोटी नाज़िल हुई थी। और फिर हम आज जरा एक हवाला पढ़ लें, यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 48 आयत से 114 नंबर पेज है। यूहन्ना रसूल की इंजील 6 बाब 48 आयत से लेके 51 आयत तक पढ़ेंगे। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप क्या दादा है? खुदा यीशु मसीह कहता है जिंदगी की रोटी। अगर वो रोटी हमारे पास नहीं तो इस रोटी का हमें क्या फायदा? हमें जरूरत है कि हम उस रोटी को लें जो जिंदगी की रोटी है। ये रोटी हमें जिंदगी नहीं देती, ये हमें तवानाई देती है, कुव्वत देती है। लेकिन खुदा यीशु मसीह कहता है मैं जिंदगी की रोटी हूं। वो रोटी जो आसमान से नाज़िल हुई थी, आज जरूरत है कि हम उसको अपनी जिंदगियों में लें। वो रोटी जो आसमान से नाज़िल हुई थी खुदा यीशु मसीह है, और वो कहता मैं जिंदगी की रोटी हूं। आगे पढ़े। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। क्या हो गए? मर गए। खाता थे, मर गए। लेकिन खुदा यीशु मसीह को जो अपनी जिंदगी में ले लेते हैं वो कभी नहीं मरते, उन पर दूसरी मौत का भी कोई इख्तियार नहीं। इसीलिए आज जरूरत है कि हम खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में वो रोटी जो खुदा यीशु मसीह है वो लें। जी पढ़े आगे जरा इसको। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है। क्या आगे? ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रहेगा वो अब तक जिंदा रहेगा। जो खुदा यीशु मसीह को खाएगा, जो उसकी रोटी को खाएगा, वो अब तक जिंदा रहेगा। जी आगे। बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। वो मेरा क्या है? गोश्त होगा। आज जरूरत है कि हम उस रोटी की तरफ, उस खुराक की तरफ तवज्जो दें जो खुदावंद यीशु मसीह देता है। लिखा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो आसमान से मन नाज़िल हुआ, तुम्हारे बाप दादा ने खाया और वो मर गए। रूहुल कुदस को हम तशबीह दे सकते हैं। रूहुल कुदस भी आसमान से नाज़िल होता है और वो हमें जिंदगी देता है, वो हमें मुहैया करता है, अजीब गरीब से बात करता है हमारे साथ, अजीबो गरीब तरीके से हमें इस्तेमाल करता है। और ये खुदा के रूहुल कुदस के सारे काम हैं। आगे पढ़े जरा, वापस चले जाए खरूज की किताब। उनमें से हर एक ने अपने खाने की मिकदार के मुताबिक जमा किया था, और मूसा ने उनसे कह दिया था कि कोई उसमें से कुछ सुबह तक बाकी ना छोड़े। कोई सुबह तक ना रखे, जो पका लिया है वो रातों रात खा लेना, सुबह तक कोई उसको ना रखे, क्योंकि क्या होगा फिर? तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, बल्कि बासा ने सुबह तक कुछ रहने दिया। सो उसमें कीड़े पड़ गए और वो सड़ गया। फिर उसमें क्या पड़ गए? कीड़े पड़ गए। उसमें कीड़े पड़ गए जो लोगों ने संभाल लिया था और फिर वो खराब हो गया। आज जरूरत है कि हम उतना ही इकट्ठा करें जितनी खुदा की मर्जी। खुदा हुक्म देता है मैं जिंदगी की रोटी हूं, हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है। आगे पढ़े जरा। मूसा उनसे नाराज हुआ और वो हर सबको अपने अपने खाने की मिकदार के मुताबिक जमा कर लेते थे, और धूप तेज होते ही वो पिघल जाता था।
सुबह होते ही वो क्या करता था, पिघल जाता था, खत्म होने। क्या आज हमारी जिंदगियों में इस तरह है? बनी इसराइल कौम सुबह सवेरे उठती थी और जाके खुराक जमा करती थी, जब धूप निकल आती थी तो फिर वो पिघल जाती थी। आज हम जब सुबह उठते हैं, क्या हम जिंदगी की रोटी को वेलकम करते हैं अपनी जिंदगी में? क्या हम उसको अपनाते हैं? हम खुदा के कलाम को लेते हैं, उसको पढ़ते हैं? क्योंकि ये सुबह सवेरे पढ़ना बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सुबह सवेरे उठ के उसको हासिल करते थे। जिंदगी की रोटी खुदा में यीशु मसीह है, इसलिए जरूरत है कि हम भी सुबह सवेरे उठे और सुबह सुबह ताजगी हासिल करने के लिए क्या करें? उसको अपनी जिंदगी में ले, खुदा का कलाम पढ़े, दुआ करें। धूप निकलने के बाद फिर तो चलता ही रहता सिलसिला। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो सुबह सवेरे उठ के उसकी इबादत करते हैं। बनी इसराइल को वफादारी के साथ, उनको पता था कि बाद नहीं मिलनी। आज हमें भी इस चीज पर यकीन होना चाहिए कि जब हम काम काज में लग जाते फिर हम खुदा को टाइम नहीं दे सकते। खुदा को टाइम हम उसी वक्त दे सकते हैं जब हम सुबह उठते हैं। सुबह टाइम पे उठे और सबसे पहले दुआ करें, खुदावन से फरियाद करें, खुदावन से कहें कि खुदा आज की रोटी तो हमें मुहैया कर, तो फिर खुदा हमें मुहैया करेगा। आए 2 कुरिन्थियों 8 बाब उसकी 15 आयत को जरा पढ़ते हैं। तो 11 नंबर पेज है, 2 कुरिन्थियों 8 बाब 15 आयत को पढ़ दे जरा। चुनाचे लिखा है कि जिसने बहुत जमा किया उसको कुछ ज्यादा ना निकला। जिसने बहुत ज्यादा जमा किया उसका कुछ भी ज्यादा ना निकला। आज भी जितना मर्जी जमा कर ले, एंड पे क्या लेके जाना है? क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ, कुछ नहीं लेके जा सकते। आप यहां से चले जाएंगे, लेकिन आपका जो रुपया पैसा जो जमा हुआ है वो आपके किसी भी काम आने वाला नहीं है। हमें खुदा को टाइम देने की जरूरत है। वो चाहता है कि पढ़े इसको। और जिसने थोड़ा जमा किया उसका कुछ कम ना निकला। और फिर खुदा ने बनी इसराइल कौम को एक हुक्म दिया कि इसको क्या कर, इस मन को क्या कर, जमा कर एक मर्तबान में। आए जरा इसको भी देखते थे। इब्रानियों 9 बाब उसकी 4 है, 261 नंबर पेज है, 261 पेज नंबर है। इब्रानियों 9 बाब उसकी 4 है, जल्दी से पढ़ दे। एक हवाला और रह गया बस, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे, टाइम हो गया। उसमें सोने का और चारों तरफ सोने से बना हुआ अहद का सबूत था। उसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मन से भरा हुआ एक सोने का मटका। खुदा ने कहा सोने का मटका बना और उसके अंदर क्या कर, मन रख। और ये अहद के संदूक में, और ये आज तक मौजूद है। अहद का संदूक मिल चुका है, बहुत जल्द उसको ओपन करने की तैयारी की जा रही है और फिर उसको ओपन किया जाएगा और उसके अंदर यही चीजें निकलेंगी जो खुदा का कलाम बताता है। क्या लिखा है, क्या क्या निकलेगा उसमें, पढ़ दें। चारों तरफ से सोने से बना हुआ अहद का सबूत था। उसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान और फूला फूला हुआ हरून का आसा और अहद की तख्तियां थी। और वो तख्तियां जो आसमान से नाज़िल, जो 10 हुक्म है, ये सारा कुछ उसके अंदर बंद है। और जब उसको खोला जाएगा तो खुदावंद की मेहरबानी से यही चीजें निकलेंगी और ये बाइबल की सच्चाई है। जो बाइबल में लिख दिया गया है वो आज भी वैसे का वैसा ही हो रहा है। और फिर मन चलता रहा, मन वो खाते रहे, लेकिन आखिरकार वो भी खत्म हो गया। आखिरी वाला पढ़ के इसको खत्म करेंगे। यशवा की किताब 5 बाब उसकी 12 है, 238 नंबर पेज। और दूसरे ही दिन से उनके उस मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन मकूफ हो गया। क्या हो गया? जैसे वो मुल्क कनान में दाखिल हो गए, उन्होंने वहां की खुराक को खाया। जैसे ही उन्होंने उस खुराक को हासिल कर लिया, उसी वक्त खुदावन ने आसमान से मन बरसाना बंद कर दिया। इस तरह ये सारा कुछ हमें नजर आता है। और जब हम अपने खुराकों के चक्कर में लगे, फिर खुदा मन को बंद कर देता है। आज जरूरत है कि सुबह सवेरे उठें और सबसे पहले खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लें। ताजगी, जिंदगी की रोटी मैं हूं,
लेकिन आज सुबह उठते ही एक तो ਅਸੀਂ ਉੱਠਣੇ ਲੇਟ ਆ फिर सानू कम्मा कारां दी छेती पै जाती है, फिर आप खुदा को टाइम नहीं देते। लेकिन जो लोग खुदा को टाइम नहीं देते फिर आप अपनी जिंदगियों को देखते कि खुदा फिर किस तरीके से आपको फंसाए रखता है। आज जरूरत है कि हम बियाबान में ऐसे बुड़बड़ाए ना, बल्कि खुदावन से कहें कि खुदा हम वो रोटी खाना चाहते हैं जो जिंदगी की रोटी है, जो आसमान से नाज़िल होती है, और खुदा आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आए खुदा इस्लाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएंगे, भाइयों में से कोई दुआ में रहनुमाई करे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, खुदावंद की हज़ूरी को महसूस करें। जीन बशीर खुदा का दरब के बाप सलाम की शरारत प्यारे यीशु जी, हम दिल और दिल की गहराई से मेरे खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे खुदावंद आज की इस पाक सुबह